ओके, सो लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे फाइनाइट ऑटोमेटा की। तो हम इसको एक बार फॉर्मल डेफिनेशन के साथ करते हैं। ठीक है। मेरी ये रिक्वेस्ट है, ये बीच बीच में अगर आप ऐसे एंट्री करेंगे तो फिर मेरे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। सो प्लीज डोंट। मुझे बताएगा इसमें ऑटो, चलो सेटिंग में चेंज करूँगा बाद में। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल we have two types of finite automata, right? uh, Let me write it here. One is called DFA, deterministic finite automata, and another is NFA, या इसको NDFA भी बोलते हैं, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, DFA एंड NDFA। जो डेफिनेशंस हैं वो ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा जो फर्क है वो हम अभी साथ में देखेंगे। सो we'll start with DFA. Okay, we'll start with DFA. What is a DFA? The definition of a DFA. So a deterministic finite acceptor, deterministic finite acceptor is defined by the quintuple. Quintuple means 5 टपल्स के साथ इसको हम डिफाइन करते हैं। Tuples are basically the set of rules, you can say. Tuples basically the rules. तो अगर हम बात करते हैं, let's say the first one, the first tuple is capital Q. Capital Q now is a finite set of, मैं टाइप ही कर देता हूँ, ज़्यादा आसान रहेगा। It will give you good picture. Where capital Q is a finite non-empty set of determinate states. So capital Q is one part. Now next, sigma. If we place sigma here, I'll place sigma separately, is a set of symbols. It's a set of symbols called the input alphabet.
called the input alphabets. Now, so I set of उसके बाद next आता है आपका the transition function. ठीक है. Next is a set of total function called there are some मैथमेटिकल सिंबल्स जिनको समझना हमने कुछ हमने पहले पढ़े हुए, कुछ हमारे पास नए आएंगे. सो क्यू नॉट भी आएगा एक इज इनिशियल स्टेट. Next is the set of final state. So I hope सबको याद है हम सिग्मा यूज करते हैं सेट ऑफ इनपुट अल्फाबेट्स के लिए, राइट? यस और नो? यस और नो? यस सर. राइट. कैपिटल Q इज अ न्यू सिंबल जो हम पहली बार यहाँ देख रहे हैं. कैपिटल Q रिप्रेजेंट्स द स्टेट्स, द इंटरमीडिएट स्टेट्स. नाउ वी हैव a function called del. Del is defined as capital Q cross sigma implies capital Q. या इसको ऐसे रहने दीजिए, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ del लिख देता हूँ एंड डिफाइन करता हूँ इसको अलग तरीके से. सो del इज ए फंक्शन और इसको अगर मैं डिफाइन करता हूँ तो del इस कॉलम सिग्मा क्रॉस कैपिटल Q implies कैपिटल Q. अब ये क्या है? वी विल स्टडी दिस. सी Q नॉट is the initial state and capital F, which is a subset of capital Q, is a set of final states. So we have these 5 things. या अगर मैं कहता हूँ let's say capital M is the machine. ऑटोमेटा को हम basically machine बोलते हैं. If M is defined as machine, then M has capital Q, has sigma, has delta as a function, Q naught as an initial state, and capital F as a set of final state. Like यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं, like a grammar for given language L is a set of V, T, S, right? जैसे हम ग्रामर को किसी लैंग्वेज के लिए जो ग्रामर हम बनाते हैं उसको हम डिफाइन करते हैं V, T, S और P में. सिमिलरली हम ऑटोमेटा को भी, जिसको हम M से रिप्रेजेंट करते हैं एज अ मशीन, एंड वी डिफाइन दिस एज, ठीक है. सो लेट्स टेक ए एग्जाम्पल जिसमें हम ये सब यूज करेंगे. ओके. सो कैपिटल, फॉर एग्जाम्पल कैपिटल M इक्वल्स टू Q नॉट, Q1, Q2, comma 0, 1, comma del, comma Q नॉट, comma Q1. ना अब हमारे पास दिस इज कैपिटल Q, दिस इज सिग्मा. जस्ट अ सेकेंड. हाँ, एक बार नीचे पूछो क्या कह रहे हैं, या तो पॉज करके मत सर के करा देंगे, पूछ लेते हैं.
आज ही के लिए अप्लाई किया, अप्लाई पहले से करा, आज लेने आए। देख लो एक बार अच्छे से करा। Now, so we had Q, we had sigma, we had del. Now del की definition अभी हमारे पास नहीं है, ये Q नॉट अवेलेबल है हमारे पास, एंड कैपिटल F the set of final state is available. Still the informations are missing, so let's find del. What is del? For example, del is given, let me write it, where del is given by Q naught comma 0 equals to Q naught del Q1 comma 0 is given by Q naught del Q2 comma 0 is given by Q2, right? Similarly, del Q naught comma 1 is Q1, comma del Q1 comma 1 is Q2. Next, del Q2 comma 1 is Q1. Now let's understand the meaning of this del function. Del function is del sigma cross Q implies Q. Now this is a क्रॉस प्रोडक्ट, ये क्रॉस प्रोडक्ट है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको डिफाइन करता हूँ, सिग्मा सिग्मा इज ए, यहाँ पर दिया हुआ है, सॉरी यहाँ सिग्मा दिया हुआ है 0,1, राइट, और क्यू दिया हुआ है क्यू नॉट कॉमा क्यू वन कॉमा क्यू टू. कोई बताएगा सिग्मा क्रॉस क्यू क्या होगा? हेलो, कोई बताएगा व्हाट विल बी सिग्मा क्रॉस क्यू? हेलो सर क्यू. नहीं, क्यू क्यू क्रॉस तो सिग्मा होता है ना. it's a cross product, so what will be the result? The result will be like 0 the comma q naught will 0 be comma having q. a, yeah, let's say q naught, so q naught will be paired with 0 and 1, again then q naught 1 will be paired with 0 and 1, then q2 will be paired with 0 and 1, right? सर जीरो पेयर्ड होगा ना क्यू नॉट के, मतलब लाइक इंटरचेंज होगा ना पोजीशन दोनों का. पोजीशन इंटरचेंज से इतनी दिक्कत नहीं है, इट्स ऑल अबाउट पेयरिंग फर्स्ट, सिग्मा कॉट क्यू नॉट. सो पेयरिंग की बात है. क्रॉस प्रोडक्ट इज बेसिकली द पेयरिंग. पेयरिंग मीन्स कि क्यू नॉट में अगर आप कैपिटल क्यू में अगर आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं और सिग्मा में अगर आपके पास 2 एलिमेंट है, सो हर एलिमेंट का सेकंड सेट के हर एलिमेंट के साथ एक पेयर बनेगा, राइट? सो दिस इज द क्यू नॉट पेयर, दिस इज Q1 पेयर, दिस इज Q2 पेयर. नाउ व्हेन आई डिफाइन दिस डेल एज अ फंक्शन, इसका मतलब जो पेयर्स हैं दैट विल लीड टू सम क्यू. अब सम क्यू मीन्स Q1 Q नॉट पे भी आ सकते हैं, Q1 भी हो सकता है, Q2 भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल आउट ऑफ दिस 6 पेयर्स एवरी पेयर विल लीड टू सम Q, either Q नॉट Q1 Q2. द वे, आई मीन जस्ट चेक दिस आउट, जस्ट चेक दिस आउट. आपके पास Q नॉट और Q नॉट और 0 का फर्स्ट पेयर है, तो डेल Q नॉट 0 लीड्स टू Q नॉट, right? Now what it means we have a Q naught initial state. So let me design this here. We have a Q naught initial state. Now so Q naught 0 pair leads to Q naught, means
अगर आप क्यू नॉट स्टेट से जीरो ट्रांजिशन मूव करते हैं, जीरो सिंबल के साथ ट्रांजिशन मूव करते हैं, देन स्टेट ऑफ द ऑटोमेटा विल बी एट क्यू नॉट ओनली. So we will design this like this. ये आया समझ में? हेलो, ये आया समझ में? हेलो. फिर एक बार दोबारा बता दो. हाँ हाँ, नेक्स्ट के लिए बताता हूँ. नाउ दिस फॉर द वन. नाउ सेकंड वन, we have state q1 with 0 leads to q0. So we have another state q1, and with q1 we will move q1 to q0 with 0. Similarly, we have q2 with 0 you leads to q2. So did you get it? Did you get it? Now when it comes to 1, q0 से अगर मैं 1 इनपुट के साथ हूं तो well I am moving q1, then q0 to 1 is 1. q1 से 1 is q2, q1 से 1 is q2, and q2 to 1 is q1, so q2 to 1 is q1. Did you get this? Yes sir, कुछ कुछ. Right. Kuch. Now let me define this again. इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन फंक्शन. दिस इज नोन एज ट्रांजिशन डायग्राम. अब ये क्यू नॉट क्या है? एक स्टेट है. किसकी स्टेट है? मशीन की स्टेट है. मशीन कैन बी इन 3 स्टेट, इधर क्यू नॉट और q1 और q2. इन तीन में से किसी एक स्टेट में मशीन होगी, राइट? जिसमें डिफाइन किया गया है कि क्यू नॉट इज द स्टार्टिंग स्टेट ऑफ द मशीन. कि जो इनिशियल स्टेट है, इनिशियल मतलब द स्टार्टिंग स्टेट और द इनिशियल स्टेट इज क्यू नॉट, राइट? q1 स्टेट जो है वो फाइनल स्टेट है, एंड q2 इज एन इंटरमीडिएट स्टेट. अब q0 स्टेट पर आप सर्टेन इनपुट्स के साथ आ रहे हैं, q1 के पास आप सर्टेन इनपुट के साथ आ रहे हैं, और q2 के साथ भी आप सर्टेन इनपुट के साथ आ रहे हैं. नाउ there is one more term we call a transition table. Let me write this again. So we have number of states. Let me create some space here. Let me write it. Transition table. So states के साथ हमारे पास होंगे दो अल्फाबेट, अल्फाबेट 0, अल्फाबेट 1, जिसको हम इनपुट कहते हैं. हमारे पास तीन स्टेट है, q0, q1 and q2. There is a state q0 which is initial, so we mark arrow here, and there is a state q1 which is final, we mark single circle here, just for the identification of the states. Okay, now so q0 से 0 इनपुट के साथ आप कहाँ जा रहे हो? q0 पर जा रहे हो. We wrote it here. q1 से 0 इनपुट आप जा रहे हो, q0 यहाँ पर लिखा हमने. q2 से 0 इनपुट जा रहे हो आप, q2 पर यहाँ भी हमने q2. नाउ इट कम्स टू 1. q0 से 1 q1 हो गया, q1 से 1 q2 हो गया, and q2 से 1 q1. We call it a transition table.
सर ऊपर स्क्रॉल कर देना थोड़ा। हाँ हाँ, I'll solve. Don't worry, I'll now see this. I hope this is completely visible to you, यस सर। right? Now, ये पूरा दिखाई दे रहा है अब आपको? यस सर। Now, check this. For a automata M, we need 5 tuples. इसीलिए इसको quintupple बोला गया है. 5 tuples is one the state Q, another is sigma, next is del, another is Q naught, another is F. हमने यह डिफाइन भी किया, Q is a set of finite non-empty internal state set. इसको आप समझे फाइनाइट नॉट एम्प्टी सेट ऑफ इंटरनल स्टेट्स. सो क्यू नॉट भी इंटरनल स्टेट है, Q1 भी इंटरनल स्टेट है, Q2 भी इंटरनल स्टेट है. दीज आर स्टेट्स ऑफ द ऑटोमेटा, राइट. सिग्मा इज द सेट ऑफ इनपुट अल्फाबेट. ये सिग्मा हम यहाँ भी यूज करते हैं, यहाँ हम इसको एज अ टी यूज करते हैं, सेट ऑफ टर्मिनल यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्रामर. So similarly यहाँ पर हमारे पास सिग्मा है which defines the input alphabet. Now del. Del के बारे में मैं बात आगे बताता हूँ. Next is Q naught. Q naught is the starting state, the initial state, and F is the set of final state which can be the all states of the automata or can be the one only. अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो डायग्राम है, इस डायग्राम में कहीं आपको फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट का डिफरेंस मिल रहा है क्या? इसमें नहीं मिल रहा है. लेट मी शो यू. When we say any state is initial, then we mark an initial arrow to it, जैसे हमने Q नॉट पे किया हुआ है. और जब हम कहते हैं कि कोई स्टेट फाइनल है, then we mark डबल सर्कल to it. अगर किसी स्टेट पे डबल कोसेंट्रिक सर्कल है ट्रांजिशन डायग्राम में, then it's a final state. और अगर किसी स्टेट पे स्टार्टिंग एरो है, इनिशियल एरो, वो डिफाइन करता है इट्स एन इनिशियल स्टेट. सिमिलरली जब आप ट्रांजिशन टेबल की बात करते हैं तो इनिशियल स्टेट पे एरो मिलता है और फाइनल स्टेट पे सिंगल सर्कल मिलता है. नाउ अगर आप कोई भी ऑटोमेटा अगर आप बना रहे, किसी भी ऑटोमेटा की आपको डेफिनेशन दी है, then you need del as a transition function, right? Yes or no? कोई बताएगा why, which is the most important tuple into it? वैसे तो सारे important है, बट कोई एक ऐसा जो नहीं है और तो काम नहीं होगा. सारे ऐसे हैं, बट इसका पूरा जो स्ट्रक्चर है वो किस पे डिपेंड करता है? क्यू वाले सेट पे. क्यू वाले सेट पे तो करता है, बट इसका जो मेन जो डेफिनेशन है वो निर्भर करता है ट्रांजिशन फंक्शन पे, बिकॉज इट डिफाइंस द स्टेट चेंजिंग विद इन द ऑटोमेटा, कि ऑटोमेटा आपका स्टेट कैसे चेंज कर रहा है. सर तो बिना स्टेट के तो स्टेट चेंज का कोई लॉजिक ही नहीं है ना. ऑब्वियसली नहीं है, and that's what I said कि all 5 tuples are important, but there is one tuple transition function who drive. अब ट्रांजिशन फंक्शन के बिना ना, मतलब आपके पास बाकी चारों हो, still you cannot move without transition function, क्योंकि ये जो किसी भी रिलेशनशिप एक है मैच में पांचों के से बिना नहीं कर सकते, बट ये जो ट्रांजिशन फंक्शन है ये किसी दो के बारे में रिलेशनशिप भी बताता है कि आपकी जो स्टेट है, ऑटोमेटा की जो स्टेट है, वो जो इनपुट अल्फाबेट है उसके साथ कैसे कनेक्टेड है. सही, राइट? समझ आया? अगर आपको इन तीनों में से कोई भी दिया गया हो, पहला ट्रांजिशन फंक्शन, दूसरा ट्रांजिशन डायग्राम और तीसरा ट्रांजिशन टेबल, कोई भी एक अगर दिया हुआ है, यू कैन ड्रॉ दी ऑटोमेटा, या ऑटोमेटा ड्रॉ करने मतलब आप उससे ट्रांजिशन फंक्शन से डायग्राम भी बना सकते हैं, डायग्राम से टेबल बना सकते हैं, यू कैन क्रिएट एनीथिंग, राइट और नॉट? हेलो? यस सर। इनिशियल और फाइनल स्टेट पता करने में दिक्कत नहीं होगा, लेकिन इससे वो अगर बस ट्रांजिशन फंक्शन दिया हो तो. नहीं, आपको दिए पूरे ही जाएंगे,
दिए आपको पूरे ही जाएंगे, पांचों नहीं है तो आपका काम हो ही नहीं सकता। आपको पांचों चाहिएंगे, पांचों टपल चाहिएंगे, एक भी मिसिंग है तो नहीं कर सकते। बट ट्रांजिशन फंक्शन के लिए जो मैं कह रहा हूं आपको कि इट डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड द इनपुट, क्योंकि इंडिविजुअल स्टेट्स अगर है तो वो ऑटोमेटा की स्टेट है, उनका कोई रिलेशनशिप नहीं है, बिकॉज उनका रिलेशनशिप इनपुट पर डिपेंड करता है और वो बताता है ट्रांजिशन फंक्शन किस तरीके का रिलेशनशिप है। ठीक है, लेट्स टेक लेट्स मूव फर्दर, अभी और चीजें समझ में आएंगी इसीलिए। नाउ लेट मी शो यू समथिंग मोर। ओके, now with this let's move for some mm, should I say with some example. Okay, let's take some example for the language and DFA, languages and DFA, because ultimately जो भी आप बनाओगे किसी लैंग्वेज के रिस्पेक्ट में बनाओगे, you will be given some language and the DFA. So let's define this. So the language accepted by the DFA M Q sigma Q naught del F is set of all strings on sigma accepted by capital M. So इसको फॉर्मली अगर मैं लिखने जाऊंगा, so I'll write L of M, sorry M of L, yeah, L of M equals to the language for the of the machine is W is a string, belongs to sigma star, where del star Q naught comma W belongs to F. Now this is very good definition. ये थोड़ा मैथमेटिकल सा लग रहा है बट इसको समझने में बहुत ही अच्छा, बहुत ही आसान। एंड I'll explain this with an example, right? So languages of NDFS. Someone wrote something. हाँ हाँ, ऑब्वियसली I'll elaborate this. मैं समझ रहा हूँ कि भाई ये आपको समझाना है, डोंट वरी। सो लेट मी हैव सम स्ट्रिंग विच इज एक्सेप्टेबल इन द गिवन ऑटोमेटा। ठीक है, सो इट शुड बी now let's take W equals to, for example, W equals to 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1। ठीक है, ये हमारा W है। ओके, दिस इज द W वी हैव। नाउ L of M, ठीक है, सो वी हैव अ लैंग्वेज, ठीक है, और सॉरी इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस W बिलोंग्स टू सिग्मा स्टार, ये कंडीशन ट्रू है या नहीं है?
इज दिस ट्रू? हेलो, Yes, sir. इस ये पहला पार्ट तो यही हो गया ना इसके लिए, सो दिस इज ट्रू. नाउ सेकंड, द डेल स्टार मींस, इसको हम अगर डिफाइन करें, सो डेल Q naught is the initial state, W, that is 0 0 0 1 0 1 0 0 1 will leads to final state, leads to final state. How? Let's see. ये आप सभी को दिखाई दे रहा है ट्रांजिशन टेबल. नाउ if we start from just a second, this is gonna be, let me write this here, null paste. So let's say del Q naught, and the string is 3 times 0 1 0 1, 3 times 0 1 0 1, and 0 0 1, 0 0 1. ना अगर आप Q नॉट पे, अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो मैं ट्राई डिज़ाइन भी कर देता हूँ. यहाँ पर वी हैव एन इनपुट टेप which has a string 0 0 0 1 0 1 0 0 1, and this string is separated by special symbol called blank, right? And our reading head is at here, and this control is having the automata. What's that automata? That Q naught is our initial state. It has a loop of 0, and then we have a Q1 state. Q naught से Q1 आप जा रहे थे 1 से, और 1 से 0 आ रहे हो आप 0 से. Your Q1 is the final state, and then आपके पास एक Q2 स्टेट है. Q2 से आप Q1 से Q2 1, और Q2 से वापस फिर 1, और यहाँ पर एक 0 का लूप. ना Q नॉट 0 मीन्स जब आप पहला टेप सिंबल पहला 0 रीड करते हो, then Q naught defines if you are at Q naught, you go to Q naught. Right or not? एक एक सिंबल रीड करने के बाद आपका जो ऑटोमेटा है that changes the state either from Q naught से Q1, Q1 से Q naught, Q naught से Q2, Q1 से Q2. It will change somewhere. So the moment I read, the reading had read 0 on the tape, it reaches to state Q naught, and remaining strings क्या बची? These are the remaining strings. So 0 0 1 0 1 0 0 1. So initially we were reading this, right? Reading head was at this place. Then result is this. आपकी स्टेट चेंज हो गई, क्योंकि Q नॉट अगर 0 रीड करता है तो Q नॉट स्टेट पर ही रहेंगे. जो मशीन अगर Q नॉट स्टेट पे है, 0 रीड करती है तो Q नॉट पर ही है. नाउ वी read the second symbol. आपका जो रीडिंग हेड है यहाँ से हटके यहाँ पर आ गया. अगर करंट स्टेट आपकी Q नॉट है, आप रीड कर रहे हो 0 सिंबल,
क्यू नॉट पे अगर जीरो सिंबल रीड करोगे तो वापस कहाँ आ रहे हो आप, क्यू नॉट पे। योर नेक्स्ट स्टेट इज डेल क्यू नॉट 0 1 0 1 0 0 1. नाउ यू हैव पास्ड दिस रीडिंग हेड, जीरो रीड करके आगे बढ़ चुका है। जैसे ही जीरो रीड करके आगे बढ़ा तो नेक्स्ट सिंबल जीरो हो गया और स्टेट चेंज हो गया, क्यू नॉट से क्यू नॉट हो गया, राइट। नाउ at the third point we are reading 0 from q naught state, then again same thing will happen, q naught result है। नेक्स्ट आपका रीड करने के बाद जो नेक्स्ट सिंबल हेड जो मूव कर चुका है, इट इज पॉइंटिंग 1 1 0 सॉरी 0 1 0 0 1, right? Now next let me place it at a bigger space, right? Let me place it here. Now next del defines q naught 1. Now you are reading one symbol from the tape. You are currently at q naught state and you will move to the q1 state. Now state will change to q1. Your head will move to the right. This head move to the right. Now your current state is q1. अब q1 पर अगर आप 1 रीड कर रहे हो, now you are reading 1 at q1, right? You are reading 1 at q1, sorry 0 at q1. So q1 से अगर आप 0 रीड करते हो तो कहाँ आओगे, q नॉट पर। Now del comes q नॉट, it is 1, हेड जो है वो राइट में मूव करके, दिस हेड मूव्स टू राइट। q नॉट स्टेट पर 1 रीड करोगे तो कहाँ आ गए वापस आप, q1 पर आ रहे हो। नाउ डेल q1 0 0 1, हेड जो है वो आपका राइट मूव कर गया है। अब q1 पर आप जीरो स्टेट पर, जीरो इनपुट के साथ अगर आप q1 से मूव करोगे तो कहाँ जा रहे हो, वापस q नॉट। डेल q नॉट 0, हेड राइट मूव कर गया, यू गॉट वन सिंबल अगेन 0। क्यू नॉट स्टेट पर 0 मिला है, आप वापस 0 पर ही जाएंगे। डेल क्यू नॉट 1, हेड राइट मूव कर गया, वन एरो। क्यू नॉट पर आपको क्या मिला, क्यू नॉट पर मिला आपको 1, 1 रीड किया आपने, स्टेट हो गई आपकी क्यू 1, स्ट्रिंग कुछ नहीं बची। नाउ यू आर एट नल, यहां पर कुछ भी नहीं बचा, यू आर एट नल। बेसिकली नल भी नहीं, नेक्स्ट सिंबल क्या है टेप पर, ब्लैंक। सो यू आर एट ब्लैंक, head is pointing towards the blank. Now a blank indicates that string is over. Now you don't have any strings. If q1 in this state, if yes को ऐसे लिखता हूं यहाँ, if q1 is a final state, then string is acceptable. क्यों कि Q1 फाइनल है तो स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल है। अगर ये लास्ट में हम किसी नॉन फाइनल स्टेट पर होते, लाइक Q0 या Q2, तो स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल नहीं होती। इज दिस क्लियर? लेट मी प्लेस दिस होल स्ट्रक्चर along with the definition.
now as per the definition, what it states, definition कहती है del star q नॉट w belongs to f. अगर w जो है वो लैंग्वेज, मशीन की लैंग्वेज से बनी हुई है, मशीन से जनरेट हो रही है फॉर द लैंग्वेज, देन इट मस्ट रीच टूवर्ड्स द फाइनल स्टेट, जैसे कि यहां पर हुआ. आपको आया समझ में? सर सिग्मा स्टार का क्या मतलब है? किसका? सिग्मा स्टार. यस सर. अगर मैं सिग्मा स्टार को यहाँ डिफाइन करने जाता हूँ, देन सॉरी, sigma star means sigma is 0,1 star. It's a star represents clean closure, clean star closure. Star represents clean star closure. By definition, it means any possible combination of 0,1. So any possible combination of 0,1 is null, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, and so on. Is this clear? Yes sir. Right? So this is how a language is related to the automata. Ideally होता क्या है? Ideally, अगर हम पूरी definition को फिर से एक बार summarize करने की कोशिश करते हैं, let's summarize this. Let me summarize this. We have a language, right? अब ये जो language है, it has some rules. रूल्स किस लिए काम आते हैं? रूल्स क्या फॉर्म करते हैं? सेंटेंसेस. रूल्स जो है वो सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं, राइट? नाउ आई एम मेकिंग सम मशीन. आई और यू और द डेवलपर इज मेकिंग सम मशीन with the help of these rules, which also makes these, which certifies basically these sentences. अगर मैं this is all about finite automata. और यहां भी क्या हुआ, इस अगर लैंग्वेज की बात करूं तो ये लैंग्वेज है, ये जो एग्जाम्पल है, ये वाला जो ऑटोमेटा है, लैंग्वेज है all possible combinations of 0,1 ending with 1. If I write in a builder form, L is all possible strings over 0,1 ending with 1. अब ये तो यहां पर एज ए एग्जाम्पल हमने ले लिया. कहां से ले लिया? हमें ट्रांजिशन फंक्शन इसका दिया हुआ था. बट इफ वी डिजाइन दिस, अगर हम इसको डिजाइन करने जाएंगे विद द हेल्प ऑफ द रूल्स, तो हमारे को क्या है? ग्रामर पहले बनानी पड़ेगी. वी टी पी कॉमा एस, राइट? टी हमें दे दिया इन्होंने, टी इज गिवन, दैट इज 0,1. अब हमें पी डिजाइन करना है. एस हमारा स्टार्टिंग सिंबल है. सो लोएस्ट स्ट्रिंग क्या हो सकती है इसमें? ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ओवर 0,1 एंडिंग विद 1. सो एंडिंग विद 1 मीन्स मिनिमम 1 तो आएगा ही. सो एस इंप्लाइज 1 एंड एस इंप्लाइज 0,1. अब 0 का कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है, राइट?
तो जीरो का कोई भी कॉम्बिनेशन कैसे आएगा, या तो लेट से ए वन लिख दिया आपने, नाउ ए विल जनरेट जीरो, ए कैन जनरेट, ए कैसे जनरेट कर सकता है, लेट से ए इम्प्लाइज जीरो ए एंड ए इम्प्लाइज ए। तो अब वन से पहले जितने जीरो है वो तो सारे आ सकते हैं, हाउ अबाउट आफ्टर वन, देन वी प्लेस सम बी हेयर, we place some b here, sorry, uh, we place some b, a के साथ हम कुछ प्लेस करते हैं कुछ इस तरीके का जो कि इसको डिफाइन कर सके in terms of let's say mm, let me draw it, let me design this, see s is my, some f is, so let me think about it. A implies b, okay, and then b will generate some, we will generate any combination of 0 comma 1, so C or D, C D imply it's a regular one, so ये तो वही नहीं सकता, C D आएगी, implies B भी नहीं आएगा, it's a regular one. We define this as Q naught is the initial one, right. Say Q2 implies Q1, Q2 implies 0 Q1, 0 Q2, Q1 implies 0, sorry, 0 Q, 0 implies 0 Q naught, Q naught implies 1 Q, 1, 1 Q1, Q naught implies 1, Q2 implies 1. Now you check this out. I designed this in the form of the states only. Now, so we have, let's say, variables. Sorry, three variables. Like one is v v is q naught, q1, q2, right? We have three variables, q naught, q1, q2. Now v s is q naught, S is the starting one and S is Q naught. Now, when it comes to P, P is the productions, right? So P is defined as like Q naught implies 0 Q naught, Q naught implies 1 Q1, and most importantly, one of its production is reaching towards the final state. So Q naught implies 1, the terminal one.
Same with the Q1. Q1 implies 1 Q2, and Q1 implies 0 Q0, and Q1 is not reaching towards the final state with any symbol, so not for Q1. Now with the Q2 implies 1 Q1, Q2 implies 0 Q2, and similarly it's reaching towards the final state, so Q2 implies 1. और ये वही सारे प्रोडक्शन है जो मैंने यहाँ लिखे हैं. Because of these rules I was able to design this grammar, or sorry this automata, or with the help of this automata I was able to identify the grammar. सर आपसे प्रसाद जी आप क्लास के बाद मिले, क्लास में कल मेरी शिफ्ट है ऑलरेडी 5 मिनट बाद क्लास खत्म होगी, उसके बाद मिलता 5 मिनट. Okay, so with all this, hello, we are able to identify the relationship between the automata and language and the grammar. Is this clear or not? Hello, Yes, sir. is this clear? Yes, sir. Okay, so we end this here. Okay, in next class onwards we'll practice some questions how to design either a grammar or an automata. So we'll move sequentially. First we will start with the automata, and then we'll move towards the grammar. Clear? Okay. Yes, sir. Okay then. Okay, so let's end this here.